Good evening, all of you. Good evening, sir. आवाज आ रही है सबको? Yes. Good Okay. evening, sir. We'll start with the part of dilution, how it affects molar conductivity. देखो, what we are doing today is one of the most important classes of this chapter. And as you understand, this chapter carries 9 marks in your syllabus. This single class can come for 3 marks in board exams. So pay full attention to this class. Take out, if you have the booklet with you, just take out page 62. What we're doing is called effect of dilution on lambda, molar conductivity. This is the title for the class. The first thing that you need to understand is that we have strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolytes will be substances like, say, HCl, NaCl, HNO3, KCl, KOH, any strong acid or base or a salt. They contribute as strong electrolytes. In this case, when you add them to water, they dissociate completely. 99.9% dissociation is there. Weak electrolytes like formic acid, acetic acid, HCN, or ammonium hydroxide, when these are added to water, the dissociation at 1 molar is roughly 2 to 5%. So if I ask you what are strong electrolytes, what will be your definition? What are strong electrolytes? क्या लिखोगे? Dissociates completely, almost completely. सबसे पहले 62 पेज के जो साइड वाला पेज खाली होगा उस पे तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे मैंने लिखा है ऐसे नोट कर लो. 62 पेज के साइड वाले पेज पे नोट कर लो सबसे पहले. यू जस्ट पुट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. आगे जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं नोट कर लो और वीक के नोट कर लो. मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें. और ये नहीं हो सकता कि आज की क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं वो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में ना आए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द एंटायर चैप्टर and this chapter carries 9 marks. Just keep that in mind. In case you get disconnected, rejoin. And I've already done this in the other batch, so you don't have the option of attending that batch also. Note कर लिए strong electrolyte, weak electrolyte? Yes, no? Yes. Okay. अब देखो, लिखो एक लाइन लिखो. Substances which dissociate almost completely when added to water. Substances which dissociate almost completely when added to water are strong electrolytes. जो ऑलमोस्ट पूरा टूट जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? लिखो.
substances which dissociate to a very small extent, substances which dissociate to a very small extent when added to water are termed as weak electrolytes. Can you repeat? Substances which dissociate to a very small extent when added to water are termed as weak electrolytes. जो बहुत कम टूटते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो ऑलमोस्ट पूरा टूट जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. सबको डिफरेंस समझ आ गया? Yes. Yes, sir. ओके, दोनों का बिहेवियर अलग होगा. अब तो हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वी डील विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl. सो वी टेक द एग्जांपल. अब तुम थोड़ा आराम से इसको समझना. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं, हम KCl यूज कर रहे हैं. हम जब इसके सोल्यूशन को डिल्यूट करेंगे तो लैम्डा m कैसे चेंज हो रहा है, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो यू टेक द एग्जांपल, लेट्स से तुम्हारे पास 1 मोल KCl है and you have added this to 1 liter water. The total solution is 1 liter and you have 1 mole KCl. So it is 1 molar. Molarity is 1. अब तुम इसमें 9 liters water और डाल देते हो, 10 liter water हो गया. तुम dilute कैसे करोगे? वाटर डाल के करो. The molarity has become 0.1 molar. तुमने इसमें 90 liter water और डाल दिया. अब मोलारिटी 0.01 हो गई. तुमने 900 लीटर पानी और डाल दिया. अब मोलारिटी 0.001 हो गई. दिस इज डिल्यूशन. मोलारिटी ड्रॉप करता जा रहा है उसका. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा कंडक्ट क्यों करते हैं? इट इज अ सिंपल आंसर. मैंने तो बताया ऑलमोस्ट पूरा टूट जाते हैं. सो दे हैव मोर आयंस. So at a high concentration, strong electrolytes will conduct more because they have more ions. Dilution का क्या इफेक्ट होगा? तुम 1 मोलर पे सोचो, एक छोटा सा जार है, उसके अंदर 1 मोल KCl है, तो K प्लस और Cl माइनस पास पास होंगे. अगर ये दोनों पास पास हैं तो जब K प्लस कंडक्ट करने के लिए कैथोड पे जाएगा तो Cl माइनस उसको रोकेगा. देयर विल बी अट्रैक्शन. अब तुमने इसमें वाटर ऐड कर दिया. इमेजिन करो एक सिचुएशन, तुमने इसमें वाटर ऐड किया. KCl तो 1 मोल ही है. जब वाटर ऐड करोगे तो क्या करेगा? इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा देगा. दूर दूर हो गए. तुमने और वाटर ऐड कर दिया, अब दूर दूर हो गए. अब तुम सोचो, अगर ये दूर दूर हो जाएंगे, इस K प्लस और ऊपर वाले K प्लस किसको Cl ज्यादा इफेक्ट करेगा? नीचे वाले को, ऊपर वाले को? मैंने 2 K प्लस को सर्कल किया. किस K प्लस को Cl नेगेटिव ज्यादा इफेक्ट करेगा? तो दिमाग तो लगा सकते हो. क्या किसको ज्यादा इफेक्ट करेगा? बोलो. Nobody can answer this question. First, Why? distance between them is less. First, because distance between them is less, तो ये Cl माइनस उसको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है. यहाँ पे इनके बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस हो गया है कि K प्लस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा Cl कहाँ पे. तो होता क्या है, जैसे जैसे तुम डिल्यूट करते जा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से कंसंट्रेशन आपने कम कर दिया, तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया. देयर माइग्रेशन हैज बिकम मोर फ्री फ्रॉम ईच अदर. दे कैन मूव मोर इजिली. सो लैम्डा m इंक्रीज हो गया. दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. कंसंट्रेशन व्हेन यू देयर इज अ ड्रॉप इन, ये कंसंट्रेशन ड्रॉप हो रहा है. देखो, कंसंट्रेशन मोलारिटी है, ड्रॉप हो रहा है. तुम पानी डालते जा रहे हो उसमें, तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा. वाटर बीच में आ जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे आयंस. तो उनके लिए अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाना आसान हो जाएगा, कैथोड या एनोड पे जाना आसान हो जाएगा. इसको कहीं नोट कर लो.
दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. लिखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट नोट दिस. अब 62 पेज पे इसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है. You have under root of concentration. On y-axis you have lambda m, and this is a straight line. इस लाइन के ऊपर तुम्हें KCl लिखा हुआ है. पेज 62. एक बार चेक करो ग्राफ. अब तुम्हें सपोज बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं डाइल्यूट करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है, तो क्या आंसर लिखोगे? व्हाट इज योर वन वर्ड आंसर? व्हाट हैपेंस? Between the ions increases. डिस्टेंस बिटवीन द आयंस टेंड्स टू इंक्रीज. अच्छा, एक मेरा छोटा सा सजेशन है. तुम में से कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन करते हो क्लासेस मेरे से, तो बिकॉज कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, एंड में तुम्हें बहुत डाउट्स भी पूछने हैं. बाय अ बेटर क्वालिटी माइक सो दैट यू नो वी कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली. अब स्ट्रेट लाइन के लिए तुम्हारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स. इसमें y एक्सिस पे ध्यान से देखो, y एक्सिस ग्राफ बना हुआ तुम्हारे सामने. y एक्सिस पे लैम्डा m है, c हम बोलते हैं इंटरसेप्ट. अ स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सट्रापोलेटेड. मैं इसको पीछे खींच सकता हूं. ये इसको यहां कट कर रहा है. जहां इसको कट कर रहा है उससे ज्यादा वो कंडक्ट नहीं कर सकता. उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा नॉट से लिखते हैं. एक लाइन नोट करो, नोट लिखो, एक नोट लिखो. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ब्रैकेट में लिखो लैम्डा नॉट इज द मैक्सिमम कंडक्टिंग एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट is the maximum conducting ability of a substance. लिख लिया? Yes. Can anybody repeat? Limiting molar conductivity lambda naught is the maximum conductivity ability of a Is the maximum conducting ability of a substance. Yes. अब ये जो C है ये इंटरसेप्ट होता है जहां y एक्सिस कट होता है, तो ये लैम्डा नॉट हो गया. ये नीचे की तरफ है, स्लोप ऐसे होता है ना, नेगेटिव होता है स्लोप. उसको हमने लिखा माइनस है, वो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा. और x एक्सिस पे है अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन. अब ये स्ट्रेट लाइन है. दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डिल्यूशन. ये सारा तुम्हें यहां पे दिया हुआ. देखो यहां से मैं पढ़ रहा हूं. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा m increases slowly with dilution. जो मैंने हाईलाइट किया हुआ इसका रीजन क्या है? Why it increases slowly with dilution? Because It tends to increase Distance between the increase. ions. लिखो लिखो यहीं पे लिखो, बुकलेट में लिखो. Because the distance between the ions increases. Because the distance between the ions increases. And can be represented by the equation. इस equation के साइड पे ना y is equal to c plus mx लिख लो. y is equal to c plus mx. ठीक है. अब ये पॉइंट को थोड़ा आराम से समझना, बिल्कुल कंफर्टेबली इंपॉर्टेंट है. तो मुझे बताओ, ट्राई एंड पार्टिसिपेट ऑन दिस. इस पॉइंट पे जहां मैंने डॉट लगाया यहां पे कंसंट्रेशन कितना है? जीरो. Zero. जीरो कंसंट्रेशन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है. जीरो कंसंट्रेशन तो कभी हो ही नहीं सकता. तुम 1 मोल KCl में पूरे अर्थ का पानी ऐड कर दो तो भी उसकी कंसंट्रेशन ऐसे चलेगी 0.00000 एंड में कोई नंबर लगेगा. यू कैन नॉट हैव जीरो कंसंट्रेशन.
जीरो कंसंट्रेशन इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। तो हम ये कह रहे हैं, जैसे तुम मैथ्स में लिमिट्स पढ़ रहे हो, कि तुमने कंसंट्रेशन इतना कम कर दिया कि ऑलमोस्ट जीरो हो गया, उस पॉइंट पे जो वो कंडक्ट करता है उसको हम लैम्डा नॉट बोलते हैं। तो यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। मैंने अप्रोचेस जीरो क्यों लिखा और जीरो क्यों नहीं लिखा? बिकॉज कंसंट्रेशन कैन नेवर बिकम जीरो, जस्ट ट्राई एंड कीप दैट इन माइंड। When concentration approaches zero, the molar conductivity is known as limiting molar conductivity, जिसका मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखवाया, the maximum conducting ability of the substance. तो limit as concentration tends to zero, lambda m changes to lambda naught. तो from molar conductivity it will become limiting molar conductivity, क्योंकि उससे ऊपर कंडक्ट कर ही नहीं सकता है वो। अब ये लाइन पहले ही अंडरलाइन है तुम्हारे। For a strong electrolyte, lambda naught can be obtained by extrapolating. Extrapolating होता है किसी चीज को पीछे एक्सटेंड कर दो, lambda naught to zero concentration। तो तुम्हें 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या तुम lambda naught निकाल सकते हो? तुम्हारा आंसर है यस, ग्राफ यूज करके निकल आएगा। इस ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे lambda m वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन, और उसका इंटरसेप्ट जो होगा वो lambda naught होगा। तो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एक, मैं 2 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, दे आर वेरी डिफरेंट आंसर्स एंड यू जस्ट नोट द क्वेश्चन। पहले लिखो क्वेश्चन। कैन वी फाइंड लैम्डा नॉट, कैन वी फाइंड लैम्डा नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन वी फाइंड लैम्डा नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट using graphical method? Can we find lambda naught for strong electrolyte using graphical method? आंसर लिखो, yes, ब्रैकेट में लिखो, it is a linear relationship, it is a linear relationship, so it can be extrapolated. ये स्पेलिंग में हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, इसको इंग की जगह इट कर देना, ईडी लगा देना एंड में। इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप, सो इट कैन बी एक्सट्रापोलेटेड। समझ आया सबको? Yes. Yes, sir. क्या लिखा है अब क्वेश्चन? साइशा बोलो, क्वेश्चन क्या लिखा है तुमने? क्वेश्चन आंसर दोनों पर। Can we find lambda naught for a strong electrolyte using graphical method? Answer, yes. In brackets, it is the linear relationship, so it can be extrapolated. परफेक्ट। अब क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग की जगह वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख लो। क्वेश्चन सेम है, कैन वी फाइंड लैम्डा नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सिर्फ स्ट्रॉन्ग की जगह वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख लो, उसका आंसर लिखो। नो, आंसर लिखो नो, ब्रैकेट में लिखो, it is not a linear relationship, it is not a linear relationship। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं अभी। लिख लिया? Yes. These are pretty important 1 mark questions from this topic। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ को यूज करके लैम्डा नॉट निकल सकता है, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन को पीछे प्रोड्यूस कर सकता हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ को यूज करके लैम्डा नॉट नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। वो लीनियर रिलेशनशिप क्यों नहीं है वो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है? अब तुम्हें अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, तुम्हें ये पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। कंसंट्रेशन कम कर दोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले ही टूटा हुआ है, पर कंसंट्रेशन कम करने का मतलब पानी डालोगे उसके अंदर तो आयंस दूर दूर हो जाएंगे। जैसे ही वो दूर दूर हो जाएंगे,
उनके लिए कैथोड और एनोड पे जाना आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से लैम्डा बढ़ जाएगा. सो देयर इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डिल्यूशन. अब हम आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे. वीक इलेक्ट्रोलाइट में let's take the example of say acetic acid. Acetic acid ऐसे टूट रहा है. You have the option of writing water, but it is not compulsory. Water लिखना है लिख लेना, तो ऐसे ब्रेक कर दिया. वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा इसलिए नहीं टूट सकते, जैसे ही वो टूटता है उसके आयन्स वापस जुड़ जाते हैं. That's why the topic of weak electrolyte was a part of equilibrium chapter in 11th. Eventually an equilibrium will be established. It will dissociate and those ions will join back and give you the acid or a base. अब इस केस में because it is a reversible process, तुम इसका अगर equilibrium constant निकालोगे, उसको ऐसे बोलते हैं dissociation constant. इसकी वैल्यू है CH3 COO negative into H plus divided by it is product upon reactants. ये आ गया. अब मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक में जो करवाया था, इफ यू रिकॉल, मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक में लिखवाया था अगर Ka बड़ा होता है, तुम खुद सोचो Ka बड़ा अगर होगा तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो H प्लस ज्यादा होगा ना. तो Ka अगर बड़ा होता है इट मीन्स मोर एसिडिक. दो तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हैं जिसका Ka बड़ा है, इट विल बी मोर एसिडिक. और एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने पीके होता है नेगेटिव लॉग. अगर पीके छोटा होता है इट मीन्स मोर एसिडिक. याद आ रहा है आप लोगों को, ऑर्गेनिक में किया था हमने ये. ठीक है. सो आई डोंट नीड दिस पार्ट. अब से इस पॉइंट से जो मैं लिख रहा हूं उसको नोट करना. यहां तक नोट करने की जरूरत नहीं. अब जो मैं लिख रहा हूं नोट करो इसको. ये मैंने तुम्हें सोल्यूशन में भी नोट करवाया था, दोबारा नोट करो एक बार. ये 11th का है इसलिए बहुत बच्चों को नहीं आता है, दैट्स द प्रॉब्लम. ये मैंने एसिड लिखा, ये ऐसे टूटा. बिल्कुल नीटली नोट करना. सो मैंने लिखा C कंसंट्रेशन होता है C00 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा. ये हमने सोल्यूशन में किया था. Ka that will be product upon reactant will be C alpha into C alpha divided by C1 minus alpha. एक C कट जाएगा, ये C कट गया, तो ये आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो K होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. इफ अल्फा इज very small, 1 minus alpha is almost equal to 1. तो तुम्हारे पास आ गया Ka is equal to C alpha square, which means alpha will be equal to under root of Ka by C. यहां तक ये वाला पार्ट बिल्कुल नीटली नोट कर लो. ये वाला पार्ट अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा बेसिकली तुम किसी भी चीज के लिए निकालना हो, अल्फा को हम निकालते हैं जितने परसेंट वो टूट रहा हो उसको 100 से डिवाइड कर दो. इमेजिन करो कोई चीज 20% टूट रही है तो 20/100 करोगे तो 0.2 आ जाएगा. अगर वो 50% टूट रहा है तो 0.5 आ जाएगा. अगर वो 100% टूट रहा है तो अल्फा 1 आ जाएगा. सो मैक्सिमम अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है. अगर तुमने कोई क्वेश्चन किया किसी भी चैप्टर में से और तुम्हारा अल्फा 1 से ज्यादा आ रहा है, पक्का गलत है तुम्हारा आंसर. अल्फा कैन नॉट एक्सीड 1. 1 का मतलब होता है वो चीज 100% टूट रही है. ये नोट कर लिए सर सबने जो मैंने यहाँ लिखा है? नोटेड है? Yes, sir. अब ध्यान से इसको समझना. वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस बड़े कम होते हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट
नंबर ऑफ आयंस इज वेरी लेस, टूटता ही नहीं है वो। पर होगा क्या, अल्फा इज टेलिंग यू कितना टूट रहा है। अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द रिलेशनशिप इज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी। के ए को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट है। अब सपोज मेरे पास 1 मोलर एसिटिक एसिड है, मैंने उसमें पानी डाल के उसको 0.1 मोलर कर दिया, और पानी डाल के 0.01 मोलर कर दिया, और पानी डाल के उसको 0.0000001 मोलर कर दिया। हाउ इट वी बिहेव इज 1 मोलर पे अगर ये 2% टूट रहा था, तो 0.1 मोलर पे हो सकता है ये 15% टूटे, 0.01 मोलर पे हो सकता है ये 40% टूटे, और 0.00001 मोलर पे हो सकता है 99.9% टूटे। इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल है। यहां पे तुम इनवर्स कोरिलेशन से डील कर रहे हो। कंसंट्रेशन अगर कम होता जाएगा, लॉजिकली सोचो, ये अगर कम होता जाएगा तो अल्फा बढ़ता जाएगा। अल्फा बता रहा है वो कितना टूट रहा है, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। बात समझ आ रही है मेरी? वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम टूटता है, जैसे तुम उसमें पानी डालोगे उसका टूटना बढ़ता जा रहा है। वो क्यों ज्यादा टूट रहा है, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी है। जब तुम पानी डाल रहे हो सी कम होता जा रहा है, सी कम होगा तो अपने मैथमेटिकली अल्फा बढ़ेगा। तो कैन आई से ऑन डिल्यूशन इवेंचुअली a weak electrolyte will become a strong electrolyte? ये पॉइंट समझ आता है सबको? Yes. Yes, sir. तो इस बस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कैन यू टर्न अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इनटू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? क्या आंसर है? यस। Yes. बाय Solution. infinitely diluting the solution. If you keep on diluting it, eventually a weak electrolyte will become a strong electrolyte. Are you getting this concept? Yes. Okay, now देखो पेज 62 पे तुम्हें एसिडिक एसिड का ग्राफ दिया हुआ है। एक ही ग्राफ है, एनसीईआरटी में एक ही ग्राफ में दोनों बनाए। तुम ट्राई करोगी बोर्ड एग्जाम में 2 ग्राफ बनाना अगर ये क्वेश्चन आ जाता। अब एसिडिक एसिड में यहाँ पे लैम्डा में, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन है। बहुत बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा था, डाउट था कि अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन क्यों लगता है दोनों ग्राफ में। ये देखो ऊपर वाले में भी अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन है, बिकॉज यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ सी यूज हो रहा है। अब एसिडिक एसिड के केस में द शेप ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस। वो शुरू में बहुत ही कम कंडक्ट करता है, आयंस होते ही नहीं उसके अंदर। ये एसिडिक एसिड का ग्राफ बना हुआ है पेज 62 पे देखो। शुरू में उसके अंदर आयंस है ही नहीं, कंडक्शन बहुत कम है। और तुम जैसे जैसे पानी डालते जा रहे हो वो ज्यादा टूटेगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वाले को एक फायदा हो रहा था डिस्टेंस का, वीक वाले को 2 फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा उसका अल्फा बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग में अल्फा बढ़ने का स्कोप ही नहीं है, पहले ही टूटा हुआ था सारा। और सेकंड, वीक वाले में डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो किस इलेक्ट्रोलाइट में डिल्यूशन पे लैम्डा एम ज्यादा बढ़ता है, क्या लिखेंगे हम? इन विच केस lambda m increases more with dilution? What is your answer? Weak electrolyte. Electrolyte. क्यों? Because alpha and the distance both. क्योंकि weak electrolyte में there's a sharp increase in number of ions because of increase in alpha. बच्चा डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो कॉमन सेंस है। पानी डालोगे, जो पानी के अंदर डिजोल्व चीज है उसमें डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर इसमें अल्फा का उसको एडवांटेज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग वाले में अल्फा का एडवांटेज नहीं हो सकता उसको, वो पहले ही टूटा हुआ है। अब द प्रॉब्लम इज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लिनियरिटी कैन बी एक्स्ट्रापोलेटेड, बट आई कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट दिस कर्व। अब तुम्हें जो बुकलेट में यहाँ पे देखो एक ग्राफ, ये जो ग्राफ है तुम्हारी बुकलेट में, तुम खुद सोचो, ये लाइन है, ब्लू कलर की लाइन है, ये लाइन इसको कहां कट करेगा, वाई एक्सिस को मैं कैसे फाइंड करूं?
तुमने दो ग्राफ बनाने, एनसीईआरटी का ग्राफ मैंने लिया हुआ है, तो उसमें केसीएल और ये एक ही, उसमें तुम दो अलग अलग में बनाओगे। ये इसको यहां कट करेगा, यहां कट करेगा, यहां कट, मैं कैसे बता सकता हूं? तो तुम ये बताओ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ को यूज करके लैम्बडा नॉट क्यों नहीं निकल सकता? क्या लिखवाया मैंने? Because it doesn't cut the y-axis. बिकॉज इट इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप। लिखा था अभी, क्वेश्चन पढ़ो, दो क्वेश्चन लिखे थे, एक में यस आंसर था, एक में नो था। समझ आया वो नो क्यों है आंसर? Yes, sir. कंसेप्ट समझ आ रहा है? Yes, sir. देखो अब एक चीज सीखो, डाइल्यूट करोगे लैम्डा एम बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग के लिए भी बढ़ेगा, वीक के लिए भी बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग के लिए इंक्रीज कम होगा, वीक के लिए इंक्रीज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसको अल्फा का फायदा हो रहा है। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका ग्राफ से लैम्डा नॉट नहीं निकल सकता। ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका ग्राफ से लैम्डा नॉट निकल सकता है। ये समरी है अभी तक की क्लास की, समझ आ रहा है ये पॉइंट? डाइल्यूशन पे लैम्डा एम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो तो पक्का है, स्ट्रांग हो या वीक हो। स्ट्रांग में कम बढ़ेगा, वीक में ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वीक में मेनली फायदा अल्फा का हो रहा है। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए लैम्डा नॉट नहीं निकल सकता। अब हम सीखेंगे वीक के लिए लैम्डा नॉट निकालने के लिए वी विल यूज कॉलरॉच लॉ, वो अब हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, ये लाइनें बिल्कुल पेशेंटली आराम से इन लाइनों को रीड करो, बॉक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लो, एक बार रीड करो इनको। सर, हाँ जी, वो एक बार आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ दोबारा से एक बार बता दोगे? अभी बता रहा हूँ बच्चे, एक बार ये पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ जस्ट। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि उसको अल्फा का फायदा हो रहा है, ये सबको क्लियर है? एग्रीड? Yes. सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है कि लैम्डा नॉट नहीं निकल सकता क्योंकि एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हो। अरे लीनियर है ही नहीं, तो मैं कहां बताऊं कहां कट करेगा? और थर्ड पैराग्राफ में लिखा है अगर उसका लैम्डा नॉट निकालना है तो आप कॉलरॉच लॉ यूज करो। तीन पैराग्राफ बने हुए हैं तुम्हें। अब जो अभी डाउट था मैं वो क्लियर कर रहा हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो चीज कम टूटती हो, उसमें नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं। अगर बच्चा नंबर ऑफ आयंस कम है तो कंडक्शन कम ही होगा, आयंस नहीं कंडक्ट करना है। सबसे पहली क्लास में तुम्हें बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन आयंस की वजह से होती है। कोई चीज हो उसमें आयंस ही नहीं है तो कंडक्ट कहां से करेगा? तो वीक बहुत कम कंडक्ट करता है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस बड़े कम होते हैं, क्योंकि कम टूटता है। बट उसमें एक रिलेशनशिप है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी, जो तुम लोगों ने अभी नोट किया है। ये अल्फा है कि वो कितना टूट रहा है, ये कंसेंट्रेशन के साथ इनवर्स कोरिलेशन रखता है। तो जैसे जैसे तुम पानी डालते जा रहे हो, कंसेंट्रेशन कम होता जा रहा है, तो उसका अल्फा बढ़ता जाएगा, इसका मतलब उसका टूटना बढ़ता जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा टूटेगा तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयन ज्यादा हो जाएंगे तो कंडक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिख रहा था ना, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, पॉइंट, वो वीक का टूटना बढ़ता जा रहा है। एक नोट लिखो, ऑल ऑफ यू पुट इन अ नोट। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट कीप दिस विद यू। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट turns into a strong electrolyte at infinite dilution. A weak electrolyte turns into a strong electrolyte at infinite dilution. समझ आया सबको ये पॉइंट? Yes. अब तुम्हें क्लियर है कि वीक में क्यों ज्यादा बढ़ता है? सबको समझ आ गया यहां तक? शुड आई रिपीट एनीथिंग?
देखो कॉलरस लॉ क्या है, उसके लॉ का बेसिक आइडिया क्या है पहले मैं समझा देता हूं। तुमने NaCl लिया, इसमें तुम इनफाइनाइट पानी डाल दो, यहां Na प्लस है और ये Cl माइनस है। Na अपना कंडक्ट करेगा, Cl अपना कंडक्ट करेगा, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इतने दूर दूर हो जाएंगे। ऐसे ही तुमने सपोज NaBr लिया, उसको इनफाइनाइटली डिल्यूट कर दिया, ये Na प्लस है, ये Br माइनस है। कॉलरॉच ये कह रहा है कि ये Na प्लस और ये Na प्लस सेम कंडक्ट करेंगे, ये इस क्लोरीन से या इस ब्रोमीन से इतना दूर है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये पहले किसके साथ जुड़ा हुआ था। दिस Na is going to conduct same. This law is called independent migration of ions at infinite dilution. इस आयन को दिमाग लो, इसको क्या फर्क पड़ रहा है ये Cl के साथ था पहले, जब ये टूट ही चुका है और Cl इससे बहुत दूर है, तो इसको क्या फर्क पड़ रहा है पहले Cl के साथ जुड़ा था या Br के साथ जुड़ा था। ये अपना कंडक्ट करेगा और Cl अपना कंडक्ट करेगा। अब उसने ये लॉ कैसे निकाला? ही टुक मेनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके लिए लैम्डा नॉट इजिली ग्राफ से निकल आता है, तो उसने ऐसे पेयर्स लिए बहुत सारे। मैं तो कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे उन्होंने NaCl KCl लिया, NaBr KBr लिया, NaI KI लिया, जितने मैंने लिखे हैं सारे स्ट्रॉन्ग हैं। व्हाट ही फाउंड, सबके लिए लैम्डा नॉट निकाला, इन दोनों के लैम्डा नॉट में 22.41 का डिफरेंस है। ही फाउंड कि इन दोनों के बीच में भी 22.41 का डिफरेंस था, इन दोनों के बीच में भी 22.41 का डिफरेंस था। उसने ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनाए एंड देन व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, उसने सोचा कि जब तुम इन दोनों के लिए लैम्डा नॉट निकाल रहे हो, ये Cl और ये Cl, इमेजिन करो Cl नेगेटिव, पहले वो Na के साथ लगा था, बाद में K के साथ लगा था। अगर तुमने इनफाइनाइट पानी डाल दिया, वो Cl Na से भी इतना दूर है और K से भी इतना दूर है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है पहले वो किसके साथ लगा हुआ था। तो उसने बोला ये Cl सेम कंडक्ट करेगा, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये Na और K के बीच में है। ऐसे ये Br सेम कंडक्ट करेगा, तो ये डिफरेंस आ रहा है Na और K के बीच में है। ये I सेम कंडक्ट करेगा, ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। और हर बार डिफरेंस क्योंकि सेम आ रहा है, इसका मतलब Na भी हर बार सेम कंडक्ट कर रहा है और K भी हर बार सेम कंडक्ट कर रहा है। सो ईच आयन makes a specific contribution towards the total conductivity irrespective of the nature of the other ion। जिसके साथ वो पहले जुड़ा हुआ था वो आउट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार तुम्हें कॉलरॉस लॉ नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, स्टेट लॉ, ये एक बार रीड करो इसको। इसको इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्यों बोलते होंगे? एनी गेसेस? बिकॉज ईच आयन इज मूविंग इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर आयन। वो इतना दूर हो गए हैं कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा वो पहले किसके साथ लगा हुआ था। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, वो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तुम ये क्यों नहीं निकाल सकते हो लैम्डा नॉट CH3COOH क्यों नहीं निकाल सकते आप? कैन एनीबॉडी टेल मी? Anybody? Because it does not have a linear correlation. Because it doesn't have a linear correlation, so you cannot find this graphically. Then the process is at infinite dilution. ये पूरा टूट गया, weak electrolyte becomes a strong electrolyte, टूटता जाएगा ना। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे आंसर आ जाता है। ये दोनों आयंस में टूटेगा, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। उसने ये आर्ग्यूमेंट दिया, ये उसका लॉ का एप्लीकेशन है। अब मैंने 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए, सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl। मुझे इन दोनों को ऐड करना है। ये सोडियम एसीटेट में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव,
HCl में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, सोचो इन दोनों को ऐड कर रहे हो तुम, तो ये और ये आपस में ऐड हो गए, क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया? NaCl। तो तुम इन दोनों को ऐड करके अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एसिडिक एसिड का लैम्डा नॉट निकल आएगा। आ रहा है पॉइंट, समझ आ रहा है? एसिडिक एसिड का लैम्डा नॉट निकालने के लिए तुम्हें एसीटेट आयन चाहिए और प्रोटॉन चाहिए, H+ चाहिए, इन दोनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। तुमने ये स्ट्रॉन्ग लिया, ये वाला स्ट्रॉन्ग लिया, दोनों की कंडक्शन ऐड कर दी, तो एसीटेट और H+ तो ऐड हो गए, NaCl एक्स्ट्रा ऐड हो गया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारा आंसर आ गया। बिकॉज यू आर यूजिंग कॉर्लॉस लॉ, एसीटेट सेम कंडक्ट करेगा, वो चाहे एसिडिक एसिड में हो या सोडियम एसीटेट में हो। इनफाइनाइट डिल्यूशन पे उसको क्या फर्क पड़ रहा है वो Na के साथ है या H के साथ है, ये उसका आर्ग्यूमेंट है। आ रहा पॉइंट समझ? यस सर। तो अब तुम मुझे बताओ, अब तुम लोगों ने आंसर करना है, इसको नोट करो जो मैं लिख रहा हूं। तुमने लैम्डा नॉट निकालना है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, ये अभी करेंगे हम क्वेश्चन और तुम लोग सॉल्व करोगे इसको, ये तुमने निकालना है। बताओ बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्शन किसकी वजह से होगी? पहले अपने आप को क्वेश्चन करो, क्या कौन से आयंस कंडक्ट करेंगे? एक बेरियम और 2 OH-, एम आई राइट? डू यू गेट दिस? यस सर। ठीक है, अब तुम्हें ये गिवन है, सपोज इसकी वैल्यू 260 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। आई एम जस्ट राइटिंग हाइपोथेटिकल वैल्यूज। NaOH की वैल्यू 164 है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और NaCl की वैल्यू 107 है। मुझे ये सोचो, मुझे अगर ये निकालना है तो इन तीनों को मैं कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ, क्या करूं तो ये निकल आएगा? सोचो, अब दिमाग लगाओ, पहले करने से पहले दिमाग लगाओ, क्या करेंगे? तुम्हें एक बेरियम और 2 OH आयंस को ऐड करना है आपस में। बेरियम कहां पे नजर आ रहा है सबको? कौन सी इक्वेशन में तीनों में से? फर्स्ट। OH कहां पे है? सेकंड। पर मुझे 2 OH चाहिए, 2 OH, तो मैं क्या करूंगा? सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, तो BaOH होल ट्वाइस ऐड हो गया। क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या एक्स्ट्रा ऐड? तो तुमने इसको ऐड किया तो तुम्हें 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा आ गए, 2 क्लोरीन, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 2 Na भी एक्स्ट्रा आ गए, मुझे उनको हटाना पड़ेगा। तो मैं थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। यस सर। अरे कंसेप्ट समझ आ रहा है? वो अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो 3 OH चाहिए होंगे, वहां पे देखना पड़ेगा ना पेपर में क्वेश्चन क्या है। तो अब तुमने इसको 1, तो इसका मतलब 260, इसका 164 का डबल कितना हो गया? 328, इसको ऐड कर दिया, ये 588 आ गया। अब तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ गया 214, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, तो ये आ गया 4 7 3 374। समझ आता है सबको? जल्दी यस नो करो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट है और पूरी क्लास इसके बारे में थी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। बेरियम हाइड्रोक्साइड की मैक्सिमम कंडक्टिंग एबिलिटी कोलरॉस लॉ यूज करके हमने निकाला 374। लैब में हमने 0.1 मोलर सोल्यूशन लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड का, हमने कंडक्शन चेक की, वो वैल्यू आ रही है 37.4। तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि मैक्सिमम 374 कंडक्ट कर सकता है। अभी कितना कंडक्ट कर रहा है? 37.4। क्यों? क्योंकि टूटा नहीं होगा, पूरा टूटा ही नहीं है वो। तो तुम अल्फा निकाल सकते हो जो कंडक्ट कर रहा है अपॉन जो मैक्सिमम कंडक्ट कर सकता है, तुम्हारा अल्फा 0.1 आ गया, इसका मतलब वो 10% टूटा है। किसी भी चैप्टर में आज तक तुमने इक्विलिब्रियम में, सोल्यूशन में, किसी भी चैप्टर में अगर अल्फा पढ़ा होगा, वो अल्फा हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से निकालते हैं। अल्फा का फॉर्मूला है
लैम्डा m जो कंडक्ट कर रहा है अपॉन लैम्डा नॉट जो मैक्सिमम कंडक्ट कर सकता है। इसको मैंने बुकलेट में लिखा हुआ है कोलरॉस लॉ के नीचे, इसको उस पे बॉक्स बना लो, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चाहिए तुम्हें। पूरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्फा कैसे निकलता है। इट इज व्हाट इट इज कंडक्टिंग राइट नाउ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कंडक्टिंग एबिलिटी। अब कई कुछ बच्चे ना उल्टा सोच लेते हैं, उसमें एक ही पॉइंट याद रखना कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 भी कभी नहीं आएगा। तो दैट मीन्स छोटा नंबर ऊपर लेना है तुमने, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। इसी के बारे में क्लास थी कि अल्फा निकालो, अल्फा से फिर के निकालो, तो अल्फा तक पहुंच गए हैं अब। ये देखो अब, बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चन, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH। इसका अगर मुझे लैम्डा नॉट निकालना है, कौन से आयंस को ऐड करूंगा तो आ जाएगा, जल्दी बोलो, किसको ऐड करूं तो आ जाए। विच आयंस आर सपोज टू बी एडेड टू गेट दिस, क्या ऐड करूंगा, लैम्डा नॉट NH4 प्लस, प्लस क्या होगा, OH minus. OH। minus. तो अगर मैं तुम्हें लैम्डा नॉट NH4Cl दे दूं, लैम्डा नॉट NaOH दे दूं और लैम्डा नॉट NaCl दे दूं, तो कैसे निकालोगे बताओ, क्या करोगे। किस किस को ऐड करोगे, किसको सेपरेट करोगे। First to add And last. second add. प्लस प्लस माइनस, पूरी क्लास को समझ आता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. शुरू हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे गलत नहीं आना चाहिए आंसर। ये क्वेश्चन है 13 तुम्हारे सामने, मार्क कर लो 13 और 14 पे इंपॉर्टेंट। एंड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉपर्ली रीड करो क्वेश्चन नंबर 13। निकला उसमें लैम्डा नॉट, तुमने ऐड करना है 129.8 को विद 217.4 और उसमें से क्या सेपरेट करना है। 108.9. ये आता है सबको समझ, तुम्हारा आंसर आ गया। 2 कितना आ रहा है, 238.3. 238. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इससे ऊपर कंडक्ट नहीं कर सकता। इस वक्त कितना कंडक्ट कर रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, 9.33। तुमने अल्फा निकालना है, क्या करोगे, जो कंडक्ट कर रहा है अपॉन जो मैक्सिमम कंडक्ट कर सकता है। तुम्हारा अल्फा की वैल्यू आ गई 0.039। आया है सबको समझ, Yes, sir. दिस इज योर Yes, आंसर। किसी को डाउट है इसमें, 0.039 समझ आया सबको। आगे. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब 14th क्वेश्चन इज द इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। इसकी बात हो रही है, मिथेनोइक एसिड सबसे छोटा एसिड ऐसे टूटेगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसका लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये निकालना है, मुझे कौन से आयंस को ऐड करना पड़ेगा, किसको ऐड करूं, HCOO नेगेटिव और साथ में क्या ऐड करेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस। तो इस क्वेश्चन में ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं, इतना आसान है। उन्होंने ये देखो, ये लैम्डा नॉट H प्लस दे दिया यहाँ पे, ये रहा 349, लैम्डा नॉट HCO माइनस भी दे दिया। अल्फा निकाल लोगे, ये Yes. करो फटाफट निकालो अल्फा। सबसे पहले लैम्डा नॉट निकालो, दोनों को ऐड कर दो बस, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में।
349.6 प्लस 54.6 आया 404 पॉइंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 sir. Yes, sir. ये उसका लैम्डा नॉट है, तो अल्फा क्या होगा बोलो। क्वेश्चन में कितना कंडक्शन दे रहा है, 46.1 दिया हुआ, डिवाइडेड बाय 404.2, ये सॉल्व करोगे 0.114 आ गया। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब तुम सीधा मत करना, बोर्ड एग्जाम में लिखना वहां पे HCOH माइनस प्लस H प्लस, इसमें तुम लिखोगे C00 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। ये पैटर्न याद कर लो बस। तुम्हारा Ka आता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तुमने इस क्वेश्चन में 2 चीजें निकालनी थी, कैलकुलेट, यहाँ देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया, ये आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक आंसर ये है। उसके बाद पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब Ka निकालो, तो तुम्हारा Ka आएगा C कंसंट्रेशन वो दिया हुआ है यहाँ पे देखो 0.025 इंटू 0.114 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.114। ये तुम्हारा Ka आना चाहिए। आ रहा है सबको समझ? Yes. Yes Yes. sir. तो कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी 3.667 इंटू 10 टू पावर आई थिंक -4 आएगा। दिस शुड बी योर आंसर। नीचे डिनोमिनेटर को निगलेक्ट मत करना, कुछ बुक्स में निगलेक्ट किया हुआ है, उसको निगलेक्ट मत करना। निगलेक्ट तुम सिर्फ तब कर सकते हो व्हेन इट इज डिसोशिएटिंग लेस देन 5%, 0.05 से छोटा हो तो, इसमें निगलेक्ट मत करना। अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज की क्लास का। 5 बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, नॉट वंस, दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कम इन बोर्ड एग्जाम 5 टाइम्स। सो बैक क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। पढ़ो 11th क्वेश्चन, ये 11th क्वेश्चन रीड करो। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इससे पिछली क्लास में 2 फॉर्मूले पढ़े थे हमने, कापा इज इक्वल टू CL बाय और लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। इस क्वेश्चन में कापा दिया हुआ, कंडक्टिविटी इज कापा। लैम्डा m is equal to kappa into 1000 upon molarity। यहां से तुमने शुरू करना है। Kappa is given to you as 7.896 into 10 raised to power -5, स्टैंडर्ड यूनिट हमें लिखनी रहा, into 1000 अपॉन मोलारिटी इज 0.00241। इसको सॉल्व करोगे जब तुम्हारा लैम्डा m आएगा 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इससे तुम अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा होता है जो वो कंडक्ट कर रहा है अपॉन जो मैक्सिमम कंडक्ट कर सकता है। तो 32.76 को तुमने डिवाइड किया 390.5 से। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 390.5। इफ लैम्डा नॉट ऑफ एसिडिक एसिड इज दिस, तुम्हारा अल्फा की वैल्यू आ गई 0.0838। कोई क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तुमने निकालना है व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka निकालना है। सीधा नहीं करना, बोर्ड के पेपर में पूरा लिखना है। ये वहां पे CH3COOH ऐसे टूटेगा, राइट द एंटायर थिंग C00 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा।
तो तुम्हारा KA हो जाता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. So you put in the value. C है 0.00241. कंसेंट्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में. अल्फा तुमने खुद ही निकाला 0.0838, उसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.0838. So when you solve this, your KA should come out to be 1.84 into 10 to the power minus 5. तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए. अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है कि बोर्ड एग्जाम में ये नंबर्स याद करके जाने हैं. आज तक ये वैल्यूज भी कभी चेंज नहीं किया उन्होंने. ये ऐसा कट पेस्ट करके आता है क्वेश्चन. ये वैल्यू याद करके जानी, ये वैल्यू और ये वैल्यू मेमोराइज करके जानी है तुमने सीधा. ये आंसर है इसका. हो गया नोट? यस सर. Yes, sir. ओके. अब ऐसा है कि कल वाले बैच में मैंने उनको ये पढ़ा दिया है, बट आई डिडंट डू द फर्स्ट क्लास फैराडेज लॉ. जो फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तुम्हारे बैच में करवा दिया था. किसी ने अगर नहीं किया इंसिडेंटली फैराडेज लॉ, सो आई विल बी टीचिंग दैट टुमारो ऑनलाइन एट 6:30. तो तुम वो अटेंड कर सकते हो अगर फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रो की तुमने मिस की थी फैराडे लॉ. और what I'm planning to do is to finish your course as like maybe by the end of September and then start with chapter first again. We'll do the entire organic again. Or some of you are preparing for competitive exams. My suggestion is in October I'll be teaching 11th their chapters of thermodynamics and then I'll be doing equilibrium, or first equilibrium then thermodynamics. तो तुम लोग 11th के बैच का मेरे से कोड लेके, उनकी सारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती हैं, तो 11th का कोड लेके वो क्लासेस लाइव अटेंड करना. मतलब वो 2 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि वो अगर तुम लाइव क्लास में अटेंड कर सकते हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा बेटर रहेगा. आई विल सेंड यू द वीडियोस बट स्टिल यू अटेंड द लाइव क्लासेस. यू कैन ज्वाइन 11th एनी टॉपिक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. यू कैन ज्वाइन 11th एनी क्लास. You can just share, just let me know. I'll just send you the code for 11th. ठीक है? क्लियर है अभी? Yes. आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? Anything you want to ask? Sorry? नो सर. तो ठीक है, फिर इसको रिवाइज कर लेना. और अगर फैराडे लॉ किसी को करना है तो कल 6:30 अटेंड कर लेना. अगर किए हुए हैं तो नो इश्यूज. चलो, टेक केयर, गुड नाइट. Thank you, sir. Thank